step is recording as well. Okay, so if you remember, on Monday we were talking about some of the terminologies which are mostly used in the networking domain, and we talked about the first one is about the latency, if you remember, which is nothing but a delay. So we have seen that this delay comprises the 4 items. Number 1, transmit delay. Yeah. The second one, if you remember, was the propagation delay. Third was, if you remember, was about the processing delay. And the final was the queuing delay. So at each node, there may be these delays, and adding them up all, and I have shown you as well that mostly there is not a point-to-point link. It may be, but mostly, and we have seen probably, if you remember again, that we use the trace-RT to ping Facebook, for example, and we have seen that between my computer and the Facebook, there might be 10-15 hops. So at each hop, there will be a transmit delay, there will be a processing delay, there will be a queuing delay, and on the link, there will be a propagation delay. So adding them up all will give you a one-way latency. And if you take the response as well, so it will be a two-way latency or end-to-end latency. So if you use, for example, ping, so if you use, for example, ping, CMD, and if you use ping, for example, www.facebook, for example, or YouTube, for example, or any which you like, and you do this, you will find that this will ओके सो हम बात कर रहे थे कि जब ये तीनों चारों मुख्तलिफ, हम बता में ये रहा था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल पिंग करूं और फेसबुक को, तो आपको नजर आ रहा है कि इस यहाँ पे आपको एक टाइमिंग नजर आ रही है 106, 112, 126, 104. सो दिस इज दी 2 टाइम डिले, यानी कि मेरे कंप्यूटर से एक मैसेज जनरेट हुआ फेसबुक को और फेसबुक का जवाब वापस हमें मिल गया. तो इससे पता चल रहा है कि दिस इज द 2-वे डिले या एंड-टू-एंड डिले बिटवीन आवर कंप्यूटर एंड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर. सो दिस इज द लेटेंसी. ठीक है. इसके अलावा एक चीज और की तरफ तवज्जो दें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों ने आईपी वर्जन 6 को क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या ये एड्रेस जो आपको नजर आ रहा है ये एड्रेस है फेसबुक का? तो क्या आप समझते हैं कि ये इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड पीपल आर यूजिंग अराउंड द ग्लोब, पीपल आर यूजिंग आईपी वर्जन 6. सो व्हाट अबाउट योर डिसीजन, whether you want to learn it or you want to leave it, ignore it. So that is your decision now. Lekin that is by sure that the world is using this type of, they have shifted or at least the newer, on one end they are shifted expansion, and the newer networks all are on IP version 6 because IP version 4 are no more available. All the addresses all already been consumed. तो इसलिए आप लोगों को जैन और तैयब और अनम इस एरिया पे अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है, इसको अच्छी तरह से सीखना है. ठीक है, सारा बात समझ आई? और ये बताऊंगा कि आईपी वर्जन 4 क्या है, आईपी वर्जन 6 क्या है, वो तो डेफिनेटली हम करेंगे. लेकिन देयर इज समथिंग चैट. यस सर, नाइस जी. तो बात समझ में आ गई तो इट्स गुड. तो बात आपको करवाने का मकसद ये है कि ये लेटेंसी है, और अगर ये ज्यादा हो, एक और चीज भी बताता चलूं. देखें, अगर मिसाल के तौर पे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके और नेट स्पीड चेक करता हूं, नेटवर्क स्पीड चेक करता हूं, टेस्ट करता हूं,
तो यहाँ पे भी आपको लेटेंसी नजर आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, here you can see speed test by Ookla, and I do the go, which means I want to check from my network, which is Storm Fiber, which is CyberNet, and you can choose any server. For example, not PTCL Peshawar, but I go for PTCL Islamabad. Okay, and I say go. So you will see that there is a ping, and here you can see these are the delays. These are the, you can say, idle latency. Here you can see the download latency. So latency is there. So network may always we talk about the latency. If this latency is too big, probably we may not be happy with the network. However, I'm getting good speed, download speed of around 13 and an upload speed of approximately the 15 around, you will find it here. So this is the megabit per second, bit per second, speed, capacity. So you can see this is the download speed on which I am getting from the others. And at this speed I can upload. Like for example, I'm sending my data to you now. So I'm uploading. And whenever I am using, for example, any other site, Facebook, YouTube, and at that time I am downloading. So that is the reason you should understand. Then that is the reason I was trying to make you comfortable with the bit per second, with the hertz and all this stuff, and delay, time, and all these. कुछ बात समझ आ रही है? So we talked about the throughput as well in the last class, and we said that throughput means how many bits I am getting. And I showed you this as well. If I use the Alt Control Del, which you can also use at your end, and go to the task manager, and here again you will find in the performance, and I go to the, not to the Ethernet, but I go to the Wi-Fi because I'm using this one, and you will find it here. The two lines, one is the solid, another one is the dotted, and this is the throughput, Wi-Fi throughput. How many bits I am sending and how many bits I am receiving. So this is the throughput of this network. Is it clear? Okay. This dotted line is representing the sending, while the solid line, which is here, is representing the receiving. So receiving is too less, but the uploading from my end, because I'm sending my audio, video, screen shared with you. So that's the reason I'm sending around 0.5 megabit per second continuously, but it is not straight. You can see here, sometime it is more, sometime less, sometime, but it is not zero because I'm continuously sending the data. Even if I send a little more, you will find it here that the speed will increase. Probably it should have, because now it is capturing more bits per second. Okay. Okay, so we move further. So this was the throughput. How many bits received? So if this is my sending machine, this is my receiving machine. So if I'm transmitting, for example, 1 megabit per second, so what will be the throughput at the output? Throughput is always at the output, at the destination where you are receiving. How many bits you are receiving per unit time? This is called throughput. So if my sending transmission rate is this one, what you expect will be the throughput here? Is the same or more or less? What do you expect? Shabash. In the chat, same or less, Zen, Sara less. Sir, less होगा. लेस होगा. तो सबका आंसर तकरीबन ठीक है कि अगर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो, जैसे हम यूनिवर्सिटी में जब हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम यूनिवर्सिटी में लें, तो उस वक्त जब आप अपने डायरेक्ट लैपटॉप्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर लोगे या दरमियान एक स्विच लगा लोगे और दो डिवाइस को यूं लगा लोगे, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट योर transmit rate and the receive rate will be same, and at that time your throughput will be the same. But if you are talking to the Wi-Fi through your Wi-Fi to Facebook or to the NetAcad or to any other, so it means far away from you, so it is expected that some of the packets may be dropped on the way, and may not be will be able to receive to the destination.
So in this case, the throughput will be less than the transmitted data, because the same packets which have been probably lost on the way need to be retransmitted again. So transmission will be more, but the throughput will be less. Is it clear? बात समझ आ रही? Last class में हमने ये पढ़ा था. And then is the throughput, good put. After the throughput, we want to see the good put. Good put means, because we know that it is all layered. So for example, and you further know now that at each layer you add some control information, you add further control information, and so on. At each layer you are adding that. Although this is control, this is not something which is sent by the user application. And when it will reach to the destination, the destination will remove all these headers. However, these headers have consumed the bandwidth or the capacity of the channel, capacity of the transmission system. But the end application, for example, zoom at my end, zoom at your end, these are the two applications. So if I'm putting, for example, 500 megabit per second or 500 kilobit per second, might be here, it might be 700 kilobit per second, 700 kilobits per second, because 200 kilo added by these headers, control information. So what will happen? That this 200 will be removed, and the destination application will be getting the same 500, not 700. So this is called good put, which means you take your throughput as I explained in this step, and you will remove the overheads. This overhead you will subtract from here, and the remaining will be called as the good put. I hope you understand this now. Is it clear? Yes, sir. Shabash. Now we come to the next topic, which is about the copper cabling. So we have seen, which means this is about the guided medium. In this part, the author wants to talk about the guided medium. And in the guided medium, you understand that it may be copper or it may be the fiber. But in this topic, he wants to explain only the copper one. And you have seen the copper. That is the good point. That you have seen the copper cable during your, probably not the last week, probably last week. And you have used this copper like the UTP cable to make the straight cable as well as the crossover cable. Just remaining is to use it, which you will be inshallah doing. So here we comes to the copper cable. So copper cable is the most common type because it is cheap, because it is easy to manage as compared to, for example, if you go to the copper fiber, even if the fiber breaks, joining the fiber again back requires some skills and equipment, like the splicing equipment, which is not required in case of the copper. In the copper, sometime we may join them with a plier, but mostly in the networks we don't do this. We put the new cable there. Okay, so copper cable is the most common type of cable used in the networks today, because wherever we are using the Ethernet, we are using mostly the copper cable. However, nowadays even the fiber is can carry the Ethernet, like in your university as well. आपने देखा होगा कि जब आप सिस्को लैब में आते हैं तो बाहर एक अदद access router लगा हुआ है, and that access router is carrying the from your end up to this access router. This is all wireless. Then there is a copper up to the box, data box. अगर आपने देखा हो और नहीं भी देखा तो कमिंग वेडनेसडे को जब आए सिस्को लैब में
तो यू शुड नोटिस कि बिल्कुल स्टेयर के साथ ही एक बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर एक स्विच, ईथरनेट स्विच प्लस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। इसलिए बिजली चली भी जाती है तो आपको पता चलता है कि नहीं जी हमारा नेटवर्क, हमारा इंटरनेट जो है वो काम कर रहा है। तो क्यों कि उसके अंदर यूएस वो पड़ा हुआ है, अनलिमिटेड पावर सप्लाई पड़ी हुई है। although क्या वो काम, उनका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो गया है, लेकिन स्टिल शॉर्ट टाइम दे गिव यू द बैकअप। तो यही वो कह रहा है कि आज के दौर में आपके पास वायरलेस भी है, आपके पास कॉपर भी है, आपके पास फाइबर भी है। जस्ट जो मेन रह गया है कि आपका जो लैपटॉप है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनमें नहीं है इसकी फीचर, लेकिन हो सकता है बहुत जल्द कोई ऐसा कन्वर्टर, अगर हमारे ओईओ कन्वर्टर्स जो हैं, ओईओ कन्वर्टर्स अगर ये चीप हो जाए कि हम उसको ऑप्टिकल दें और वो हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे और वो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम अपनी लैपटॉप को, क्योंकि हमारे पास अभी तक ऑप्टिकल डिवाइसेस से मुराद हमारे पास ऑप्टिकल लैपटॉप नहीं है। हमारे पास जितने भी लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर, सर्वर के अंदर, स्विचेस के अंदर, राउटर्स के अंदर, फायरवॉल्स के अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है वो सबका सब किस पे चलता है? इलेक्ट्रिकल पे चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फॉलो करता है। लेकिन जो ही हमने और तमाम प्रोसेसिंग, स्पेशली सबसे बड़ा इशू जो है दैट इज दी प्रोसेसिंग, कि प्रोसेसिंग जो हमारा प्रोसेसर है वो इलेक्ट्रिकल प्रोसेसर है। जिस दिन हमने काबिल हो गए कि हमने इलेक्ट्रॉनिक या सॉरी ऑप्टिकल या फोटोनिक मतलब हासिल कर ली, या रैम भी और प्रोसेसर भी, तो देन स्पीड्स एंड एवरीथिंग विल जंप बाय बिग नंबर एंड दैट विल बी अ बिग सक्सेस। बात समझ आ रही? यस सर। शाबाश। तो नाउ कम्स टू दी, ये क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया एक तो चीप है, ठीक है ना। आपने लैब में लास्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे थे, हमने किसी को नहीं कहा कि नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि ये तो अब गोल्ड की बनी हुई है और गोल्ड का तो लेट इट बी 10 ग्राम्स भी जो है वो तकरीबन 1,70,80,000 रुपए का है। वी कैन नॉट, हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं, कॉपर था, हमने कहा इस्तेमाल करो, गलत हो जाए काट के फेंक दो, दोबारा बना लो, बिकॉज इट इज इनएक्सपेंसिव टू सम एक्सटेंट। देन इजी टू इंस्टॉल, जस्ट डक्ट लगाओ, डक्ट के अंदर से पास कर दो। और नंबर 2, हम ये क्लेम करते हैं कि ये कॉपर प्योर है। अगर ये कॉपर प्योर है तो उसकी रेजिस्टेंस लो है, और रेजिस्टेंस लो होने की वजह से लॉसेस कम है। तो इन 3 वजूहात की वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हो, तो आप कह सकते हैं कि जी इट इज एक्सपेंसिव नहीं है, इसको अलग बनाना आसान है, इसको इंस्टॉल करना आसान है, इसको रेजिस्टेंस कम है, इस वजह से इसमें लॉसेस कम है। यू नो, ऑल ऑफ यू आर इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स, तो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो आई स्क्वायर आर होता है, आई स्क्वायर आर होता है, विच इज पावर लॉस, आई स्क्वायर पावर डिसिपेशन, आई स्क्वायर आर। तो दिस इज समथिंग, जब आर कम होगा तो यू अंडरस्टैंड कि आई स्क्वायर आर कम होगा, दैट समथिंग वी वांट। तो इसकी वजह से हम बात करना चाहते हैं एटेन्युएशन की, एक और टर्म जो कि मोस्टली यूज होती है टेलीकम्युनिकेशन में और नेटवर्क्स में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, एटेन्युएशन। एटेन्युएशन का मतलब ये होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि एटेन्युएशन का मतलब ये होता है कि जब सिग्नल यहां से 0.1 से, जैसे चलो मैं आसान सी एग्जांपल पहले ले लूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कि अगर मैं आपको कहूं कि जी आप अपने डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट कॉलेज तो देखा होगा, रोड 2 के बिल्कुल एंड के ऊपर जो कॉलेज है उसको फॉरेस्ट कॉलेज कहते हैं। अगर मैं आपको ये टास्क दे दूं कि आप लोगों ने भाग के जाना है फॉरेस्ट कॉलेज तक और फिर वापस आना है, तो जब आप वापस आएंगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो बस यही बात हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि अगर 0.1 से 0.2 तक सिग्नल, कोई भी सिग्नल जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है चाहे वो ऑप्टिकल सिग्नल है, तो उसका क्या होता है, उस विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे लाइक दिस, देखें एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, एंड दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड एटेन्युएशन। तो जितना आपको पता है कि एम्पलीट्यूड कम होता है, उतना ही उसमें एनर्जी कम होगी, और एक वक्त आएगा कि एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो
उसकी, क्योंकि हर एक डिवाइस की अपनी एक सेंसिटिविटी होती है, उससे कम वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो नहीं सुन सकता, वो नहीं कैप्चर कर सकता। तो दैट इज द रीजन कि आपने देखना, इसी वजह से आपने ख्याल कभी किया हो, इफ यू आर यूजिंग फॉर एग्जाम्पल यूटीपी केबल, इफ यू आर यूजिंग ए यूटीपी केबल, तो अगर एक डिवाइस यहाँ पे है, दूसरा डिवाइस यहाँ पे है, कोई आप में से ऐसे गैस लगा सकता है कि इसके दरमियान जो लेंथ होता है, जो लेंथ होता है वो कितना स्टैंडर्ड वाइज अलाउड है, हाउ मेनी मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली कुछ बोल दें, कोई वो नहीं है। नहीं बोलना, चलें जी, समथिंग इन द चैट, एंड चैट इज सेइंग 50 मीटर्स, 50 मीटर्स। जैन का ख्याल है कि 50 मीटर्स, और एग्जैक्ट है 100 मीटर्स। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम गेस तो किया ना। तो अगर आपने लेट करें कि 200 मीटर पे पहुंचाना है, आपका सोर्स जो है एस जो है वो यहाँ पे है, डेस्टिनेशन आपसे 200 मीटर दूर है, तो फिर आपको रास्ते में उसको सिग्नल इतना कमजोर हो जाएगा 200 मीटर पे कि आपका डिवाइस से उसको जो चीज मिलेगी दैट विल बी पुअर लाइक दिस, दैट द रीजन इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज ए 1 और 0, इसलिए कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हमें फिर रास्ते में 100 मीटर के ऊपर उसको दोबारा रीजनरेट करते हैं और फिर आगे भेजेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रीजनरेट का मतलब ये होता है कि जिस तरह मुसलमानों का वो है, अकीदा है कि आप हज पे चले जाएं तो सारे गुनाह माफ हो गए, बस इसी तरह समझ लें कि रीजनरेटर ये काम करता है कि अगर ये आपका सोर्स है, ये आपका रीजनरेटर है, और ये फिर आपका आगे रास्ता है अप टू द डेस्टिनेशन, तो यहां से आपका सिग्नल आएगा तो वो यहां तक पहुंच के एटेन्युएशन की वजह से बहुत कमजोर पड़ जाएगा, काफी कमजोर हो जाए, इतना कि सिर्फ ये रीजनरेटर उसको समझ तो सकता है, लेकिन अगर आगे भेजा तो नहीं जा सकेगा। तो रीजनरेटर उसको, उस सिग्नल को, अगर यहाँ पे सिग्नल लेट करें कि ये है, तो यहाँ पर भी उसी तरह का सिग्नल दोबारा पैदा कर देगा ताकि ये आगे जा सके। तो दिस इज द टास्क ऑफ द रीजनरेटर। हैव यू सीन समवेयर द रीजनरेटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, or have you used the regenerator? Shabash. Have you or not? Simple answer. Or have you seen or not? Again, a simple answer. And the simple answer is amplification. There is a difference between amplification and regeneration, Zan. Let me explain. The regenerator and amplification, which is done in the amplifier, amplification is not same. This is done in the analog domain, while this is done in the digital domain. So that is the first difference. But the more important difference is that in the amplification, whatever you feed to this amplifier, it will increase its amplitude. It will increase its amplitude. Simple. While, so mostly आपने देखा होगा कि आज भी जुम्मे का दिन था, अगर जुम्मे के दिन आप नमाज के लिए जाते हैं तो बाज़ औक़ात बहुत ही एनोइंग किस्म की स्पीकर से हमारे खतीब साहब की आवाज आ रही होती है, हालांकि तो उसके साथ तो वो मसला नहीं है, उसको वो तो बड़ा क्लियर बोल रहा था। क्यों? क्योंकि अगर इस सिग्नल में नॉइज आ गया है और साथ सिग्नल है तो ये इस दोनों को एम्पलीफाई कर देगा, एस को एस डैश बना देगा, एन को एन डैश बना देगा, तो दोनों ही एम्पलीफाई हो जाएंगे, जिस वजह से नॉइज इतना बढ़ जाता है कि आपके लिए सुनना मुमकिन नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया कि जैसे कि आप हज को लेते हैं कि जी तमाम गुनाह माफ हो गए अगर हज कबूल है, तो यहाँ पे रीजनरेटर का मतलब ये है कि इसने उस सिग्नल को इंक्रीज नहीं किया, इसने उसको देख के अपना सिग्नल क्रिएट किया। तो यूं अगर सिग्नल एंड नॉइज आता है इसके इनपुट के ऊपर, तो ये नॉइज को नहीं, सिग्नल को देख के दोबारा एक सिग्नल जनरेट करेगा, रीबर्थ उसकी करेगा और उसको आगे भेज देगा। दैट इज द डिफरेंस।
Does it make sense to you now, Zan? Oh, the number of students have gone even to 3. Tayyib, Zan and Anna. अब समझ नहीं आ रही कि लाइट का मसला, नेट का मसला या शो की नहीं है. ओके, यस सर. तो ये है एटेन्युएशन, एम्प्लीफिकेशन, रीजनरेशन, जो कुछ टर्म्स थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी. इसके अलावा एक और टर्म है क्रॉसटॉक. क्रॉसटॉक का मतलब ये होता है कि अगर जी देयर इज समथिंग, व्हाट विल बी द डिवाइस फॉर रीजनरेशन. ओके, वो तो हमारा क्वेश्चन बीच में रह गया था. ये तो मैं पूछ रहा था उस वक्त कि हैव यू सीन द रीजनरेटर इन समवेयर और नॉट. एंड द सिंपल आंसर इज योर ईथरनेट स्विच, जो कि आपने इस्तेमाल किया हुआ है. नहीं भी किया तो अभी आप देखा तो कम से कम हुआ है, बिकॉज लैब में सामने पड़े हुए हैं और लगे हुए हैं. एंड जगह जगह पे आपकी यूनिवर्सिटी में डेटा बॉक्सेस लगे हुए हैं जिनके अंदर ईथरनेट स्विचेस लगे हुए हैं. तो दीज ईथरनेट स्विचेस वर्क्स एज ए one of the job of these Ethernet switches is to regenerate the signals. जवाब मिल गया Zan? ओके, सो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे क्रॉस. हो गया आपके सवाल का जवाब? नहीं, रीजनरेटर के बारे में पूछा था Zan. Okay, so now comes to the, now yes sir, clear. Now I want to explain a term which is called crosstalk. Crosstalk is somewhat, if I make it clear and write here to make it further explain, let me give me just a few seconds. Okay, so ladies and gentlemen, crosstalk is based upon a concept which you all know, and that concept is about the Faraday's law. And the Faraday's law explains that if I write it mathematically, for example, so you know that it is E is equal to minus n d phi by dt. What it means? Simple. That if you have a circuit and you have another circuit which is not connected directly with it, like here, and if you provide a voltage here, a alternating voltage here, so a rate of change of flux will be generated here. A d phi by dt is generated here. That d by dt means rate of change. So it means a changing flux will be here. And when this changing flux will, and we call this as a primary, and we call it as a secondary, and when this changing flux will touch this secondary wire or secondary circuit, so what happens? A voltage is created here, and voltage is induced here, which is given by this minus this E, induced EMF, induced voltage or EMF, whatever you call it. So a voltage is created here, and if you put a load here, for example a bulb here, you will find that this bulb is glowing. So what happens? The only thing is that it depends upon, number one, the rate of change of flux, and it depends upon the number of turns of the secondary. And so, ladies and gentlemen, can anybody give me a hint of this minus sign, which was given by, if you remember, by Lenz's law? That negative sign, if you have forgotten, is about the direction, because E is a phasor, and phasor has a direction opposite it causes. Yeah. So Zan, it means that, for example, if it is plus and it is minus, so induced voltage will be, this will be negative,
and this will be positive. It means if the current is flowing by plus, I mean high voltage, high potential. So if the current is flowing from high potential to low potential, like here, it will be flowing in the opposite direction here, because high is now here, high to low. So it means opposite in direction, rightly mentioned by Zan. So this phenomenon is called crosstalk, which is somewhat similar concept, I will say, that you have seen during the physical classes, that that a single cable contains multiple pairs, maybe 100 pairs. Even in your UTP cable, there are 4 pairs, 8 wires. So there can be any number of pairs, like this is the first pair, this is the second pair, this is the third pair, and so on. So I have shown it by different colors. So they are different pairs. So if your voice is a variable voltage, like here, a variable voltage. So if there is a variable voltage in this pair, whether it will induce an EMF in the second pair or not. What you think about? Zan is saying yes, and I hope the others may just we have Tayyab and Anam, because probably rest and Talha as well. So yes is good answer. So here it will be yes sir, Tayyab is also agreeing with this. So Tayyab and Zan ने हमें बताया कि इसमें एक वोल्टेज, एक वायर से वोल्टेज आ जाएगी, एक तो इसकी अपनी वोल्टेज है, मतलब ये पेयर है आपकी, किसी की वॉइस ले जा रहा है, किसी का डेटा ले जा रहा है, किसी का वीडियो ले जा रहा है, ऑडियो ले जा रहा है, कुछ ले जा रहा है। तो एक तो इसका अपना है, एक तो इसका अपना है, ये लटकन है इसका अपना है, और ये जो कलर्ड मैंने शो किया, ये इसको इस पेयर की वजह से मिल गया, इस पेयर की वजह से मिल गया। नाउ वट एवर इज कमिंग हियर इज कॉल्ड क्रॉसटॉक। और ये आपने मोस्ट ऑफ द पीपल ने ऑब्जर्व की होगी कि स्पेशली टेलीफोन नेटवर्क्स में, कि बाज़ औक़ात आप फोन उठाते हैं और आपको अपने हमसाये की आवाज आ रही होती है। वो क्या हो रहा होता है, उसका पेयर और आपका पेयर करीब करीब है, तो उसके पेयर से आपके पेयर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसको कहते हैं क्रॉसटॉक, जिसको कहते हैं नॉइज। बात समझ आ गई? जिसको कहते हैं क्रॉसटॉक। और ओके, सो दिस इज दी okay, so this is about the crosstalk and that affects even a crosstalk इस वायर में नहीं होती, बल्कि होती तो है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नहीं होती, लेकिन इसके अलावा ये आपके वायरलेस नेटवर्क्स में भी ये क्रॉसटॉक आ सकती है, कि अगर आपके एक टावर के ऊपर मल्टीपल एंटेनास लगे होते हैं और ये हर कोई अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा होता है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में, लेकिन अगर इनके करीब करीब कोई फ्रीक्वेंसीज हैं, तो ये एक का सिग्नल दूसरे में कुछ इंडक्शन कर सकता है, कुछ इंडक्शन कर सकता है। दिस इज कॉल्ड आल्सो द क्रॉसटॉक। सर हाउ कैन वी रिड्यूस दिस क्रॉसटॉक? गुड आंसर क्वेश्चन अनम का क्वेश्चन है, हम कम कैसे करें? द आंसर इज, अगर आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे आपको उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपने कभी पूछा नहीं, कि चाहे मैंने आपको यूटीपी केबल भी दी और मैंने आपको टेलीफोन लाइन की भी टीपी केबल आपको दिखाई थी, बल्कि आपको दी थी कि देख लो, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी नहीं पूछा था कि इसको ट्विस्ट क्यों किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट केबल जैसे मैंने यहां बनाई, ये यूं भी हो सकती थी, क्यों इसको ट्विस्ट किया गया, क्यों इनको यूं ट्विस्ट किया गया एक दूसरे के ऊपर, क्यों इनको एक दूसरे के ऊपर यूं ट्विस्टिंग की गई? ये मैंने रेड और ब्लू और ग्रीन से इसलिए शो किया ताकि आपको नजर आए, ये ट्विस्टिंग की गई है यहाँ पे, ये इस तरह फ्लैट नहीं है, लेकिन आपने नहीं पूछा था उस वक्त। दैट वाज द रीजन कि ट्विस्ट और ट्विस्टिंग से नुकसान है। क्यों नुकसान है? कि अगर आपके पास ये लेट करें 2 मीटर की वायर है, अगर आप इसको ट्विस्ट कर दें तो क्या ख्याल है, ये लेंथ 2 मीटर से बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? इसका अच्छा जवाब जो है अनम दे सकती है, क्योंकि आप लोग अपने बालों को जब ट्विस्ट करते हो
तो बाल लंबे हो जाते हैं या थोड़ा ऊपर चले जाते हैं? कम होगा। डैट्स देखें, उसने पहले से जवाब दे दिया कम। तो लाजमी तौर पे 2 मीटर की वायर मुझे हो सकता है 1.8 मीटर दे रही हो, यानी कम हो गई है। तो पैसे तो मुझे 1.8 के मिलेंगे। मुझे, मैं तो ये नहीं कह सकता उसको कि जी तो बंदा तो मुझे जो खरीदता है वो तो मीटर रूल रख के करता है, तो उसको 1.8 मीटर मिलेगा, 1.8 मीटर के पैसे देगा। लेकिन ये ट्विस्टिंग फायदा क्या देती है? ये मिनिमाइज करती है, रिड्यूस करती है क्रॉस टॉक। ये मिनिमाइज करती है क्रॉस टॉक को। कैसे मिनिमाइज करती है? क्योंकि अभी आपने देखा ना कि यहां पे डायरेक्शन था, अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था। इसी तरह अगर यहाँ पे एक पेयर में, अगर ये एक पेयर आपके सामने नजर आ रहा है, अगर मैं एक पेयर और यहाँ पे बना लूं, तो आपने देखा कि यहाँ पे डायरेक्शन अगर अप है, यहाँ पे डायरेक्शन डाउन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अप हो गया है। यहाँ पे डायरेक्शन डाउन है तो यहाँ पे डायरेक्शन अप हो गया है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो अब ईएमएफ का डायरेक्शन भी तब्दील हो जाएगा। तो अगर पहले ईएमएफ जो था वो इस डायरेक्शन में पेयर में आ रहा था, नेक्स्ट माइक्रो सेकंड में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। और अब क्योंकि ये फेजर्स हैं, द टू फेजर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, what you expect from them? If I have two phasors, one is this and the other one is this, what will be the end result? Let it be minus plus 2. The answer is in the chat. Cancel the effect. कैंसिल द इफेक्ट। तो यहाँ पे कैंसिल द इफेक्ट का, कैंसिल का मतलब जीरो कर देना। मैं नहीं कहता कि हो सकता है थोड़ा बहुत हो, लेकिन रिडक्शन कम से कम हो जाएगी। और कम से कम जो अनम का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कि क्यों हम ये ट्विस्टिंग करते हैं। और जब आप आगे जाके देखेंगे कि इसकी, मैंने बताया भी था कि डिफरेंट जनरेशन हैं, जिसे हम कहते हैं ये कैट 6 है, कैटेगरीज हैं। जनरेशन नहीं कहना चाहिए, कैटेगरीज। ये कैटेगरी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो आपने कभी ये नहीं देखा या पूछा कि इनमें फर्क क्या है? इनमें मेन फर्क ये है कि इनमें क्रॉस टॉक कम से कम की जा रही है और कॉपर को मोर एंड मोर प्योर किया जाता है, ताकि इनमें लॉस कम हो जाए, एटेन्यूएशन कम हो जाए, जिसकी वजह से इनमें नॉइज कम से कम जनरेट हो, जिसकी वजह से ये हाई स्पीड पे जा सकें। जैसे एक केबल होता है वो 10 मेगाबिट पर सेकंड पे जा सकती है, तो इसके अलावा नेक्स्ट जो आई है वो 100 मेगाबिट पर सेकंड पे जा सकती है। उससे अगली जो आई है वो 1000 मेगाबिट पर सेकंड पे जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो 10,000 मेगाबिट पर सेकंड तक जा सकेगी या जा सकती है। तो दैट इज द रीजन कि आप उनको ज्यादा प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसका लेंथ छोटे से छोटा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो लेंथ है, एक ट्विस्ट का लेंथ है, ये आप छोटा से छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जूं ही ये ऊपर जाए उसके साथ ही नीचे चली जाए। यानी ये ट्विस्ट का लेंथ जितना छोटा होगा, यू अंडरस्टैंड, कि जूं ही ये ऊपर जाएगा साथ ही ये नीचे गिर जाएगा, तो दूसरे में जो इसका इफेक्ट होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। डू यू गॉट माय आंसर एवरीवन? Anam, Tayyab, Talha, then do you got the explanation? Is it, does it make sense to you? And there is something in the chat. Yes, sir. And chat is saying yes, sir. Okay, nice. Okay, so let's continue then. Okay, अब इसके बाद हम आते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन वही सवाल जो अभी अनम ने किया, हाउ टू रिड्यूस। तो मिटिगेशन, strict adherence to the cable length limits will mitigate the attenuation। यानी कि जितनी मिसाल, तो अगर आपको 100 मीटर की इजाजत है तो 100 मीटर से ऊपर मत जाओ। तो दैट इज वन वे जिससे आपके एटेन्यूएशन एक हद तक नहीं जाएगी कि दोबारा रिकवर ही ना हो सके। यानी एक बंदा को आप बीमार हो जाए तो आप उसका इलाज ही ना करें, तो वो इतना बीमार हो जाएगा कि फिर इलाज करेंगे भी तो फायदा नहीं होगा। तो यही वो कह रहा है कि जो भी स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि 100 मीटर तक जाओ तो 100 तक जाओ। इसके मुकाबले में मिसाल के तौर पे यू आर यूजिंग अक्रॉस द कोएक्सियल केबल, you can go up to 200 meter. If you are using another coaxial cable which is called thicknet, you can go up to 500 meters. If you are using an optical fiber, you can go up to kilometers. To adhere with the standards. Number one, some kind of copper wire mitigate this electromagnetic and radio frequency interference by using metallic shielding। क्या मतलब?
मतलब ये है कि बाज केसेस में आपने देखा होगा मेटालिक शील्डिंग का मतलब है, मैंने बताया था ना, एक होती है यूटीपी और एक होती है एसटीपी। यूटीपी स्टैंड फॉर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी स्टैंड फॉर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्यों शील्डेड की जरूरत है? एंड द आंसर इज हियर। एंड द आंसर, anyone of you can have a guess till I clear this slide what I have written here. There is something in the chat, and the chat is saying that, let me read it and then answer to you. The chat is saying insulation purpose. Zan is saying it is insulation purpose. Okay, the answer is I will not call it an insulation purpose, but anyhow I explain. So anyone else, because I have two others as well. Zan ke saath saath we have Talha and Tayyib as well. And the answer is the following. Let's explain. If for example, this is your copper wire, this is your UTP cable, for example, this is your UTP cable, and this UTP cable is carrying the signal. And here, for example, you have some generator or some motor or some other device which is generating the same frequency spectrum. The same, मैंने explain किया था ना spectrum को, list of frequencies. So this frequency, this is your cable. I show it by this UTP, for example, and I have some generator or maybe some other device which is generating similar frequencies. So these two, the frequency in the generator may affect the frequencies within this UTP cable. So it will have a bad, the two signal will, because they are on the same frequency, they will interfere with one another, which is not desirable. So to solve this issue, we put a extra layer which we call as shielding, so that this effect from outside may not reach to this inside cable. This phenomenon is called shielding. So your STP cable, what it has the difference with this UTP? That UTP cable has only this. STP cable will have, for example, an extra shield here, so that the signal which are outside, which may affect this signal inside, this shield will protect this something to reach to this signal. In this way, the interference will not be there. That phenomenon is called shielding. Got it? So now this shielding can be from any electromagnetic signal, or it can be from some radio frequency. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, दिस पर एक एंटेना दूसरा एंटेना, तो यहाँ पे जो सिग्नल बाहर से आ रहा है, जो मे बी आपसे 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, so there is a probability that they may affect each other, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो जाए. यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई रास्ता, या तो इनको इतना दूर फ्रीक्वेंसी में या तो डिस्टेंस दूर करेंगे या इतनी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस करेंगे कि एक दूसरे को इफेक्ट ना कर सके. डज इट मेक सेंस? Okay, so some kind of copper cable mitigating crosstalk, okay, Talha, crosstalk by twisting. अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्विस्टिंग से किस तरह आप ट्विस्टिंग करने से how you mitigate the effect of a crosstalk. Okay, then is here you have already seen this, gentlemen. This is your UTP cable. While this is your
STP cable. What is the difference? I hope you can see that there is an extra. You can see here that there is an extra shield here. So this is the insulation, but inside the insulation there is the extra shielding which is not there. There is only the insulation. So what we have shown you in the class, that was the UTP. I hope that in the coming class we can show you the STP as well. Not expensive. So this is the, definitely as compared to UTP it will be expensive because an extra shield is there. But इस लिहाज से मैंने कहा कि एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि 2-4 मीटर अगर हम लाके आपको सिर्फ दिखाने के लिए तो इट इज अफोर्डेबल, इस लिहाज से मैंने कहा। इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते कि जहां पे एक्सटर्नल हमें खतरा नहीं है, यानी खतरा है तो ये इस्तेमाल करो, एसटीपी इस्तेमाल करो, खतरा नहीं है तो गो फॉर यूटीपी। एंड मोस्ट ऑफ द नेटवर्किंग यू विल फाइंड दैट पीपल आर यूजिंग यूटीपी। जस्ट वहां पे जैसे मिसाल के तौर पर पावर हाउस है जहां पे या कोई मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि जनरेट कर रहा है कुछ फ्रीक्वेंसीज जो कि माइट अफेक्ट योर सिग्नल इन दीज वायर्स, then you can go for the UTP, STP. Does it make sense? Then is the cross coaxial cable. So coaxial cable, the good point about the coaxial cable is that it has an inner conductor. और ये केबल आपने मेरा ख्याल है and probably it is right कि आप सब लोगों के घर केबल टीवी है, और केबल टीवी के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो यही कोएक्सियल केबल होती है। इसको बाद लोग कोएक्स भी लिखते हैं, कोएक्स। ठीक, तो इसमें क्या होता है, और ये आप क्योंकि आपके घर पे है तो आप इसको खोल के देख भी सकते हो कि एक इनर कॉपर, प्योर कॉपर कंडक्टर होता है, फिर उसके ऊपर ये इंसुलेशन होती है, फिर उसके ऊपर ये इंसुलेशन है, और फिर उसके ऊपर एक और कॉपर की ब्रैड है। ठीक है, तो यहाँ भी 2 कंडक्टर्स हैं, यहाँ भी आपने देखा था हर एक में 2-2 कंडक्टर थे, एक पेयर है, यहाँ भी पेयर है कि एक ये है और एक ये है, और फिर इसके ऊपर इंसुलेशन होती है। तो हम भी आपको दिखा देंगे, और अगर आपके घर पे है तो आप खुद भी देख लीजिएगा। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल नॉइज है, इंटरफेरेंस है, वो रिड्यूस हो चुकी होती है। इस वजह से ये तो 100 मीटर से आगे जाना खतरनाक है, ये आप 200 मीटर तक, या थिन नेट के केस में, और अगर आपके पास थिन नेट की बजाय थिक नेट है, यू कैन गो अप टू 500 मीटर्स, which is around half kilometer. क्यों? Because of its structure like this. So this is another cable which we use in the past. हम इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब क्योंकि ये आपको 100 मेगाबिट पर सेकंड तक देती है और ये आपको गीगाबिट में दे रही है, इसलिए ज्यादातर लोग ट्विस्टेड पेयर की तरफ, और ये चीप भी है, सस्ती भी है, इस वजह से लोग ज्यादातर नेटवर्क्स में यूटीपी इस्तेमाल आजकल करते हैं। लेकिन जहां पे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैंने आपको केबल नेटवर्क की दी, केबल टीवी की दी, केबल नेटवर्क की दी, इसके अलावा सेकंड एग्जांपल, जिन लोगों के घरों में डिश एंटेना लगे हुए हैं तो उनको भी आपने देखा होगा कि वहां भी आपके डिश से जो केबल आपके टीवी यानी रिसीवर तक आती है, आपके रिसीवर तक आती है, वो भी कोएक्सियल होती है। इसके अलावा कई जगहों पे आपके जो अर्थ स्टेशन हैं, सैटेलाइट के जो अर्थ स्टेशन हैं, वहां पर भी ये केबल इस्तेमाल होती है। हाउएवर कई जगहों पे इस कोएक्सियल को ऑप्टिकल फाइबर ने रिप्लेस कर दिया, कहीं पे ऑप्टिकल फाइबर ने, कहीं इसको यूटीपी ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसकी कम हो गई है इस्तेमाल। देन इज दी, जैसे मैंने बताया था कि आप अगर आप यूटीपी की बात करें तो एक इसमें क्या है, ये आपकी एक्सटर्नल इंसुलेशन है, फिर उसके बाद क्या है कि आपने 4 इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, और आपने खुद देखा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि हर पेयर के साथ ब्राउन है तो व्हाइट ऑफ ब्राउन है, अगर ब्लू है तो व्हाइट ऑफ ब्लू है, अगर ग्रीन है तो व्हाइट ऑफ ग्रीन है। यहाँ पे इस डायग्राम में इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने फिजिकली देखा हुआ है तो आपके लिए कोई मसला नहीं है कि
तो और ये भी अब आपको क्लियर हो गया है कि क्यों ट्विस्टिंग करते हैं, क्यों ट्विस्टिंग करते हैं। तो यही वो कह रहा है। और आपको ये भी पता है कि इस केबल के एंड के ऊपर जो कनेक्टर लगता है उसका नाम है RJ45, RJ45 कनेक्टर, जो कि आपने देखा हुआ है आपको ड्यूरिंग दी प्रैक्टिकल लैब के दौरान ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी। तो यही वो कह रहा है कि नंबर 1 क्या काम है, इंसुलेशन का क्या काम है कि ये आपकी कॉपर के आउटर जैकेट आप उसको कह लें, इंसुलेशन कह लें, और इसका काम है प्रोटेक्ट करें, इन अंदर की वायर्स को प्रोटेक्ट करें। फिर नंबर 2 में ट्विस्टेड पेयर प्रोटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस। ट्विस्टिंग इसलिए की कि इसका सिग्नल इसकी तरफ जाए, इसका सिग्नल इसकी तरफ जाए, तो एक दूसरे को ये कम से कम इफेक्ट करे। और थर्ड, कलर कोडिंग इसलिए की गई कि कुछ इसमें से ट्रांस के पेयर्स हैं, यानी ट्रांसमिशन के लिए और कुछ रिसीविंग के लिए हैं। तो और इन ट्रांस और रिसीव को भी TIA EIA 568 A और B, A एंड B के साथ स्टैंडर्ड बना दिया गया, ताकि जहां ट्रांस है वहां ट्रांस हो और जहां रिसीव है वहां रिसीव हो और गलती ना हो। मेक सेंस? तो अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, और अगला में हम UTP की बजाय STP, थोड़ा सा इसको देखो और फिर जब इसको चंद सेकंड्स के लिए अपने रेटिना पे सेव कर लो और फिर इसको देखो, तो फर्क आपको फील होगा कि फर्क कहाँ है। फर्क बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा शील्ड है। लाजमी नहीं कि हर पेयर को अलग अलग इंसुलेट किया जाए, किया जा सकता है, इट विल बिकम इवन मोर एक्सपेंसिव, लेकिन मोस्टली सिर्फ एक ही फर्क होता है कि एक एक्स्ट्रा शील्ड, इस प्रोटेक्शन नंबर 1 के अंदर एक एक्स्ट्रा शील्ड क्रिएट लगाई जाती है, जो कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को इन पेयर्स तक आने की इजाजत नहीं देते। इसको हम कहते हैं शील्ड, इसको हम कहते हैं शील्ड। ओके, तो यही वो कह रहे, देखें नंबर 1 आउटर जैकेट, उसी तरह उसके बाद एक शील्ड है, फॉइल, शील्ड, जो मर्जी कह दो, प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्शन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन? फ्रॉम एक्सटर्नल EMI और RFI। EMI स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड RFI स्टैंड फॉर रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। ठीक, तो उसके बाद में भी देयर में भी ईच पेयर को अलग अलग इंसुलेट किया जाए, लेकिन मोस्टली आपको नजर नहीं आएगा। मोस्टली ये होता है बस के अंदर, जैसे कि लास्ट स्लाइड में दिखाया गया कि जस्ट एक एक्स्ट्रा फॉइल ऐड की गई, बाकी कोई चीज इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। ओके, सो ओके 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 जी, बिल्कुल। यहाँ और कलर कोडिंग किस लिए की जाती है, और ताकि ट्रांस और रिसीव को आप पहचान सकें। अगर सारी एक ही कलर की होती तो आपके लिए मसला होता है कि कौन सी केबल इस साइड पे ट्रांस है, ताकि दूसरे एंड पे वो रिसीव में लगाई जाए। तो इसलिए कलर कोडिंग कर दी जाती है ताकि इट बिकम्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। डजंट मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? आई होप वी डोंट हैव एनी लेडी हियर नॉट टुडे, बट क्योंकि एक दो ने हमें ज्वाइन किया, सारा और अनम ने, लेकिन दे आल्सो लेफ्ट। एंड सर EMI एंड RFI वाली बात रिपीट कर दें। ओके, देखें जेंटलमैन कि आपको पता है कि अगर मिसाल के तौर पे ए गुड एग्जांपल इज, बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है, आपके पास कोई ट्रांसफार्मर है, तो उस ट्रांसफार्मर के पर जब आप इनपुट पे वोल्टेज देते हैं, ये आपके आई होप के डिपार्टमेंट में भी चीप चीज है, अवेलेबल होगी, और आपका सेकंड एंड पे ये है, तो यहां से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो यहां से निकलती है और इसको कट करती है, लिंक करती है। तो इस अमल को हम कहते हैं दिस इज दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे इंटरफेरेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन electromagnetic waves are coming from here and reaching to the from the primary and reaching to the secondary.
लेकिन अगर ये आपके इंटरफेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आए कि नहीं ये दूसरे को, यहाँ तो ये पॉजिटिव चीज फायदा होता है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि सेकेंडरी में या वोल्टेज इंक्रीज कर लें या करंट को डिक्रीज कर लें, इंक्रीज कर लें, तो ट्रांसफार्मर में इट मेक सेंस टू अस। लेकिन अगर ये किसी को नुकसान इंटरफेरेंस करे, यानी यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये आपकी प्राइमरी है और ये प्राइमरी किसी और सर्किट को डिस्टर्ब कर रही है, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसके मुकाबले में अगर दूसरी एग्जांपल आपको ये दूं कि अगर आपके किचन में ओवन लगा हुआ है, जो कि मोस्ट लोगों के किचन में मौजूद होता है, माइक्रोवेव ओवन। नाउ दिस माइक्रोवेव इज जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी एट 2.4 गीगाहर्ट्ज। अगर आप यहाँ पे कोई वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं या यहाँ पे कोई वाईफाई रूटर हो या आपका डिवाइस हो जो कि वाईफाई पे उस वक्त काम कर रहा हो, इस ओवन के करीब ओवन को भी ऑन कर दो और अपने मोबाइल को ला के इसके करीब रख दो और यूट्यूब को चला दो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम हियर। उसी मोबाइल को आप उठा के दूर ले जाओ, अपने कमरे में ले जाओ, एंड यू विल फाइंड इट इज फाइन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? frequency some frequency is generated by here, microwave frequencies are generated here, and that frequencies are interfering with the frequencies which are being used by the Wi-Fi. So this such type of interference will be called as radio frequency interference. Does it make sense to you? Okay, nice. तो तलहा अभी भी शेखुपुरा में ही है या वापस आ गया है? सर वापस आ गया हूँ। अच्छा, वहाँ कैसा मौसम है? सर्दी है इस तरह ही? सर्दी सर सर्दी है वहाँ पर भी, लेकिन सर उधर फॉग बहुत ज्यादा है सर। उधर पंजाब साइड में फॉग बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, बल्कि स्मोक बहुत ज्यादा है। जी सर, बिल्कुल सर, स्मॉग है वहाँ पे बिल्कुल। जी बिल्कुल। एनीहाउ, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, हमने ये देख लिया, हम बात कर रहे थे कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल में हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता में सब लोग टाइम से पहले ही छोड़ के जा रहे हैं। एनीहाउ, तो आपने देखा कि कोएक्सियल केबल में क्या होता है, मैंने इसे बताया कि एक इनर कंडक्टर होता है, इनर कंडक्टर के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, एक इंसुलेशन होती है, फिर आपकी एक ब्रैडेड एक लेयर होती है, एक वोवन कॉपर ब्रेड होती है, मेटालिक फॉइल, जो भी मर्जी दे दो, मे आई कॉल इट द कॉपर ब्रैड, BRAID, ब्रैड कॉपर की। एंड देन वी हैव द इंसुलेशन जैकेट, देन वी हैव द जैकेट एट वन। तो बेसिकली यहाँ पर भी दो या ये एक्ट करता है एज ए पेयर, लेकिन बाहर की कोई भी जो वायर होती है, बाहर की जो भी इंटरफेरेंस होती है, वो इस सिग्नल को जो इस वायर में जा रही है इफेक्ट नहीं करती या मिनिमम इफेक्ट करती है। इस वजह से क्वालिटी ऑफ द सिग्नल इसी से बेहतर होती है और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है, अटेन्युएशन कम होती है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर कोएक्सियल केबल। और यहाँ पे स्पेशल किस्म के कनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस जगह आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में केबल का नेटवर्क है, केबल से आ रहा है, तो ये कनेक्टर आपने देखा होगा जिसको BNC कनेक्टर कहते हैं। इसके अलावा आपने BNC के अलावा आपने एक T कनेक्टर भी देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप करते हैं कि एक वायर अपने घर में लेकर आए और 2 टीवी लगाने हैं, तो 2 केबल तो आपको अलाउ नहीं करता कि मेरे नेटवर्क से अंदर लेकर जाओ, लेकिन आप एक वायर अंदर लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे एक T कनेक्टर यूं लगा होता है, एक पे आप ये केबल टर्मिनेट कर देते हैं और फिर एक टीवी इधर लगा लेते हैं, एक टीवी इधर लगा लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड T कनेक्टर। तो देयर कैन बी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स हैं विच आर बीइंग यूज्ड इन दी कोएक्सियल केबल। ठीक है, सो उसके बाद आता है दी यूटीपी केबलिंग, और यूटीपी केबलिंग आपने ऑलरेडी पढ़ भी लिया है और कर भी लिया है। आपने ये केबल इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता है कि क्या है, किस तरह हमने इससे 2 किस्म की वायर्स हमने बनाई, स्ट्रेट केबल भी बनाई और हमने इसकी मदद से क्रॉस केबल भी बनाई। अब वो बनी हुई पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी में। जो ही आप लोगों का ऑफ विंटर वेकेशंस खत्म होती हैं तो वी एक्सपेक्ट कि आप उस पे ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करके और देखेंगे कि वाकई उस पे ऊपर डेटा मूव कर रहा है। दैट इज सिंपल।
सो दैट इज सिंपल। तो यहाँ पे वही देखें जी, 568A स्टैंडर्ड, EIA TIA स्टैंडर्ड, A और B है इसमें। अगर दोनों एंड के ऊपर A या दोनों एंड के ऊपर B का स्टैंडर्ड लगाया जाए तो यू गेट ए स्ट्रेट केबल, और अगर एक एंड के ऊपर A और दूसरे पे B लगाया जाए तो देन इट इज कॉल्ड ए क्रॉस केबल। तो और इसकी कैटेगरीज है मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे कैटेगरी 3 तो इस्तेमाल होती है टेलीकॉम में, लेकिन 5, 5E, 6 और आजकल तो इवन 7 कैटेगरी में भी केबल अवेलेबल है। फर्क क्या है इन सब में? ओनली द स्पीड। मिसाल के तौर पे 5 जो थी दैट वाज अप टू 10 मेगाबिट पर सेकेंड, 5E आया तो 100 मेगाबिट पर सेकेंड, 6 आया तो इट वाज अप टू 1 गीगाबिट पर सेकेंड। सो मोर स्पीड यू कैन अचीव। देन इज दी कनेक्टर्स भी आपने देख लिए हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया RJ45 कनेक्टर्स हैं। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप इस तरह की केबल बनाएंगे तो फिर इट विल बी टर्म्ड एज पुअरली टर्मिनेटेड यूटीपी केबल, और जिन लोगों ने इस तरह बनाई थी जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, देन इट इज कॉल्ड एज दी प्रॉपरली टर्मिनेटेड यूटीपी केबल। ठीक है, और आपने ये कनेक्टर को केबल के साथ ज्वाइन करके इधर STP या इधर दी स्ट्रेट और क्रॉस केबल आपने बनाई हुई है। बेसिकली ये सॉकेट्स हैं, ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखा दूं। इनका मकसद ये होता है कि अगर आप, बल्कि अगर हम कमिंग वेडनेसडे को लैब 1 में जाके उनको फिजिकली देख भी सकते हैं कि जी ये सॉकेट्स कहाँ हैं, कैसे हैं। लेकिन एक सॉकेट हम ये हासिल कर लेंगे जो कि आप लोग अपनी लैब में देख सकें और फिर उनको फिजिकली चेक कर लीजिए, जिनको कहते हैं सॉकेट्स। तो वही स्ट्रेट और क्रॉस की बात, नथिंग मोर। इसलिए मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इट इज नॉट एन इशू टू अंडरस्टैंड। सो हियर इट इज दी फॉर टुडे वी स्टॉप हियर। अगली क्लास में हम ऑप्टिकल फाइबर पे बात करेंगे इंशाल्लाह। ऑप्टिक फाइबर आपने देखा हुआ है, फाइबर का मैं प्लास्टिक फाइबर भी आपको दिखाया है और ग्लास फाइबर भी आपको दिखाया हुआ है और केबल भी दिखाई हुई है। जस्ट वी हैव टू मूव थ्रू ताकि एंड वी विल बी फिनिशिंग इट एज वेल इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ज़ैन एंड तला तो आई एम रेडी टू आंसर, नहीं तो देन आई मे स्टॉप, क्योंकि तकरीबन 1 मिनट के बाद ऐसे भी ये जूम के सेशन ड्रॉप हो जाएगा। जी सर जनाब, हमारी छुट्टियां एक्सटेंड तो नहीं हो रही सर? अभी तक कुछ नहीं कह सकते जब तक गवर्नमेंट नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी जो है वो, यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली इस वीक पे भी खुश नहीं है क्योंकि आपका जो स्केड्यूल होता है वो बुरी तरह से इफेक्ट हो जाता है। यस सर। थैंक यू सर। वेडनेसडे वाला वलाल समथिंग जैन ने कुछ लिखा लेकिन समझ नहीं आई। तो अगर हो गया तो आपको थ्रू यूर डिपार्टमेंट और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। जी आपका वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों लेक्चर्स शेयर हो जाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।